They were the IPL champions in their very first season that they played. They were the finalists next year, but then the year after that, they couldn't even qualify for the playoffs. We are talking about the Gujarat Titans, and this series is dedicated to your favorite IPL teams where we decide about their playing 11s. That is completely what we feel. You guys can also chip in and tell us what playing 11 suits you the best and which player do you feel deserves a spot on that 11. So गुजरात टाइटंस स्टार्ट करते हैं. सिद्धांत है मेरे साथ. शुभमन गिल को जगह मिलनी चाहिए इस टीम मिल सकती है. मिलनी चाहिए. बिल्कुल मिलेगी. Of course he's the captain, guys. So when we talk about the 11, the first name that goes on the sheet Surprising. is surprising. That's a surprise. Very big surprise, but any which way, शुभमन गिल शुभमन गिल फर्स्ट आगे भाई. उसके बाद एक और सरप्राइज है बहुत बड़ा. मतलब I think this is their biggest pick this year's auction. मतलब जॉस बटलर. Butler and Gill opening together. Let's see how that goes. Well, he was actually the most expensive foreign player bought in this auction, around 15 crores का लिया. Made sense. Absolutely, considering the kind of form he has shown in the IPL over the years. So Josh Butler is their biggest buy in this auction. You have to look at, like, they had a decent purse, but you look at the players that they got, you know that blockbuster वाले level पे ना एक ही आदमी है इनके पूरे squad में, apart from of course the usual Shubman Gill and the bowlers, few of them, but Josh Butler से काफी expectation होगी and काफी important होगा. हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब इनका ना एकदम जो ये वाला स्पॉट है ना, सेकंड ओपनिंग स्लॉट, एकदम रैग्स टू रिचेस वाला हो गया. रिद्धिमान साहा से जॉस बटलर. रैग्स टू रिचेस. मतलब डोंट थ्रो अ शेड एट रिद्धिमान साहा, बट यस, we have to agree that Josh Butler is definitely is like a big upgrade on the lines of talent in T20 cricket. It's like rags to riches. By England captain, World Cup winning captain, the guy has done so well for England as a T20 batter, as a limited overs cricketer. और IPL में कितनी सक्सेस मिली है ना, for Bombay, for Mumbai and for Rajasthan also. So Josh Butler, Josh the boss. Terrific opening partnership. Number 3 with Sai Sudarshan. Undoubtedly, he is another player who was retained and he deserved it. I think if you look at Gujarat Titans, the players who have improved ever since they started with them, Sai Sudarshan will probably be on top of that list. The guy has even made India debut after that, so you know that he has improved so much as a cricketer and he performs. I think Sai Sudarshan absolutely. Last year we missed that, like last year वो था कि Gill and Sudarshan खेलेंगे, बाकी सब का पता नहीं. But अब Gill, Butler भी है and Sudarshan. So top 3 extremely sorted, right, no doubt at all. Sudarshan I think also got 100 last time when Gill also scored that ton. But I feel कि यहाँ पे थोड़ा सा एक जो issue होता है ना सुदर्शन के साथ मुझे, there are games where he actually goes out there and smashes the ball, but there are games जब वहाँ थोड़े से slow हो जाते हैं. कम का strike rate हो रहा होता है. I think that is where Butler comes in. He can start, like he can take his little time, okay, at the start, but if he goes off now, Butler can smash everything. So I think Butler will provide them with that extra firepower that they were missing last season in their top order. Right. Number 4 पे कौन आ रहे हैं सिद्धांत? आपके फेवरेट प्लेयर्स में आते हैं. मेरे फेवरेट प्लेयर्स में आते हैं. ये कहेंगे आप, देखिए मेरे फेवरेट प्लेयर तो नहीं बोलूंगा, बट आज का सिद्धांत उनकी बात बहुत करता है. I think a lot of people might not have him in their playing 11, but I definitely think that Sharfin Rutherford from the West Indies will be batting at number 4 for the Gujarat Titans. 2.7 crores दिए गुजरात ने उनके लिए, and let's face it, even though it's not one of those names that you'll immediately say that oh he has to be there on the team sheet, इनके recent performances आप देखें ना, so they have been exceptional. He recently scored 100 in T10 cricket, not T20, T10. Abu Dhabi T10 जो लीग चल रही है. T10 or T20? That is T10. T10 में 100 मारी है. Really? Yes. So I remember that he scored 103 not out, but I didn't realize it was T10. It was T10. Damn. So Sharfin Rutherford can be a good option. और कोई आपके साथ नंबर 4 पे थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है कि कौन खेला इनके लिए मुझे लगता है कनंड्रम होगा यहाँ पे. बट देन व्हाट आई फील इज भाई महिपाल लोमरो. और मुझे रिसेंटली ना उस बंदे के बारे में काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि नॉट इन दैट सेंस. आप ही ने बोला, मैं तो कुछ कहा भी नहीं. आई न्यू ना ये क्या कर सकता था, मैं अभी हंसता 2 मिनट बाद. बट देन यस, as far as his cricket is concerned, भाई रणजी में उसने जाके 300 मारा. He was playing for Rajasthan, remember? But then he also had a very decent IPL last time around for RCB, जहाँ पे Gunox बहुत अच्छी खेली थी.
And I really feel that Gujarat Titans would also need that stability in the middle order. जहाँ पे I know Rutherford is in very good form, but then you need that sort of solid player in the middle order. तो मुझे लगता है Nomra और इन दोनों में टॉस अप रहने वाला है. हो सकता है. Maybe they will play both. You never know. They could play both also. Yes, Impact they player, can. impact player का rule है ही तो you never know, because at the end of the day the impact player rule provides you with an extra batter or a bowler, like bowler in both innings. So right, so it is important to see that हम दो option दे रहे हैं यहाँ पे number 4 के लिए. It is entirely possible that both of them play. Absolutely. Okay, any which way, let's move on to the next guy. भाई अब ना पता प्रॉब्लम जो मैं कह रहा था क्यों मिडिल ऑर्डर वाली, वो अब समझ आएगी क्योंकि यहाँ से ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं. By the way, मतलब हम we did the Rajasthan Royals team, you remember? Okay, Rajasthan Royals squad, you look at it, all-rounders ही नहीं है वनिंदु असरंगा के अलावा. मतलब इतने बुरे दिन हैं उनके कि IPL T20 की वेबसाइट पे जाओ तो वनिंदु असरंगा ऑलराउंडर में नहीं है. पता ऑलराउंडर में कौन है? नीतीश राणा और युद्धवीर सिंह शरद. मतलब एक बैटिंग करता है मेनली केवल और एक बॉलिंग करता है मेनली. दोनों को मिला के बना लेना. ऑलराउंडर उनके हैं. अब आप गेस करिए कितने ऑलराउंडर इनके पास हैं. नहीं कर सकोगे. 12 ऑलराउंडर्स इन दी गुजरात टाइटंस स्क्वाड. ओके 12. मतलब 12 तो हमने काउंट किए. मे बी देयर आर 2-3 मोर. वी नेवर नो. लाइक हमने मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप आईपीएल की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहां पे वो 9-10 शो कर रहा है. बिकॉज़ मुझे लगता है उसकी भी स्लॉट्स खत्म हो गए होंगे लगाने के लिए. ये ऑलराउंडर है. तो 12 तो है ही इनके ऑलराउंडर. तो इमेजिन. एनी व्हिच वे, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद की मतलब नंबर 4 तक हमने बता दिया. अब नंबर 5 कौन होंगे? एक नए खिलाड़ी जो इन्होंने अब की बारी लिए हैं. लास्ट ईयर आईपीएल में ज्यादा नहीं खेले थे, बट फिलहाल थोड़ा इंडियन टीम के लिए ना थोड़ा उभरते हुए सितारे दोबारा से बन गए हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन वॉशिंगटन सुंदर. लव, you think it's high time he gets a much higher I feel place in मुझे लगता है. पता है क्यों? बिकॉज सी और उनके ऑप्शंस भी नहीं है. फ्रैंकली गुजरात के पास ऑप्शंस भी नहीं है. अब यहाँ पे किसको रखोगे? राहुल तेवतिया? नहीं, राहुल तेवतिया हैज टू कम लिटिल लोअर. एग्जैक्टली. सो भाई यहां पर मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा आपको डेप्थ भी देगा, एंड ही इज अ टाइप ऑफ गाय जो इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकता है, बट देन इफ यू नीड दोस बिग सिक्सेस ही कैन स्मैश दैट एज वेल. सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पोजीशन फॉर एनी साइड, क्योंकि हो सकता है ये जब आएंगे 12वां 13वां ओवर चल रहा हो एंड एट दैट टाइम यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय. तो वॉशिंगटन सुंदर फॉर मी ओवर हियर, बिकॉज इसके बाद अगर आप देखोगे ना सो राहुल तेवतिया आ जाएंगे, उसके बाद शाहरुख खान आ जाएंगे. So let me just say it. तो वॉशिंगटन सुंदर के बाद नेक्स्ट 3 प्लेयर्स तो सॉर्टेड है. राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान. तीनों रिटेन थे. हाँ, राशिद खान मैं भी इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज़ आई थॉट बॉलर्स का मैं बात कर लेंगे. सॉरी ऑलराउंडर की बात हो रही है. ऑलराउंडर्स की बात हो रही है. तो अब वो ऑलराउंडर राशिद खान इज आल्सो. दैट्स व्हाई आई सेड राशिद खान इज एन ऑलराउंडर. हाँ, माय पॉइंट इज कि राहुल तेवतिया और शाहरुख खान आपके यहाँ पर होंगे. राहुल तेवतिया यस ही हैज प्रूवन दैट टाइम एंड अगेन. सबको लगा था कि भाई एक सीजन ऐसा गया, अब नहीं उसने नेक्स्ट सीजन भी करा. एंड द सीजन बिफोर मतलब ये ऐसे प्लेयर है जो कभी लगता नहीं है. थॉट ही इज अ स्पिनर. ओके, ही इज प्लेइंग एज अ बॉलर इन द साइड, बट ही वाज विनिंग मैचेस विद द बैट. एक्चुअली या किसे मारा था इन्होंने? शेल्डन कॉट्रेल को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो राजस्थान के बेचारे ने एक नो बॉल कर दी थी बीच में. और उसके बाद बाय द वे फॉर गुजरात आल्सो ही हैज फिनिश्ड अ नंबर ऑफ मैचेस, सो डेफिनेटली he was retained, guys, so has to be there in the 11. But my point is, Siddhant, abhi bhi you cannot rely on him as much as you would on Washington Sundar to bat. My problem is कि मैं तो नंबर 3 आपने 1 2 3 बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर. उसके बाद ना मुझे थोड़ा डाउट बढ़ते जा रहा है इनके लाइनअप में कि बैटिंग वाइज yes they have got few options like all-rounders के तौर पे and all, but if you look at their squad you can't suddenly say and say भाई क्या player है. Apart from those top 3 in their batting order, they have got players who have performed well. Tewatia, Rashid Khan will play. Shahrukh Khan, they have retained, so he will play for sure. तो वही वाली चीज है कि वो रदरफोर्ड खेलेंगे, लोमरोर खेलेंगे या मतलब वॉशिंगटन सुंदर तो खेलेंगे. But finally, I think SRS से बाहर निकल के देखो बात है कि टाइम मिलेगा. ग्लेन फिलिप्स भी वहां पर. हाँ, करेक्ट. अगर ये चाहे तो रदरफोर्ड अगर बाय चांस इफ ही डजंट प्ले ओवर देयर और वहां लोमरोर खेले तो ग्लेन फिलिप्स को नीचे एक रखने का उनके पास ऑप्शन होगा. एक स्पिन ऑप्शन और हो जाएगा आपके पास. एक आपके and if Glenn Phillips gets crazy fielder, मैं कह रहा हूँ एक exceptional fielder भी आ जाए. भाई अगर 10 रन बचा देता है ना that's like gold dust. See, Glenn Phillips is an option, but why? Based on batting form, because see, priority is batting. You have to look at it, and that's why I think Sharfin Rutherford, because he's now playing for West Indies also in T20s and has been doing well in the CPL also. I think Sharfin Rutherford might get the nod ahead. Plus, Sharfin Rutherford के लिए bidding war जरूर हुआ था.
मतलब गुजरात टाइटंस एंड आई थिंक आई डोंट नो सेकंड टीम होती 2.7 करोड़ में बिके थे, बट ग्लेन फिलिप्स तो पहले अनसोल्ड गए थे एंड देन समबडी that's बॉट हिम एट, मतलब गुजरात बॉट हिम एट द एक्सेलरेटेड ऑक्शन. Hmm, सो इसीलिए आई थिंक रदरफोर्ड फॉर मी दैट नंबर 4 इज डेफिनेटली Rutherford for me. Lomror I think can be your impact player as well. He did that. हाँ, for इम्पैक्ट प्लेयर की तरह भी आ सकते हैं. हाँ. बट सिद्धांत, मूविंग ऑन, अब यहाँ पे चीजें Bowlers. इंटरेस्टिंग होती है. मैं Bowlers. एक ही बार ना चारों नाम ले लूंगा. भाई बॉलर्स, मैं कह रहा हूँ कि बॉलिंग लाइनअप देख के ही मुझे लगता है कि ये कुछ कर दिखा सकते हैं, बिकॉज देयर बॉलिंग इज इंप्रेसिव. नाम है, मैं कहूंगा कि पेपर पे नाम है. राशिद खान है, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा. तो भाई ये अगर लाइनअप देखो तो नाम पढ़ के ही कोई कह देगा कि यार क्या बात है, ऐसी बॉलिंग लाइनअप शायद ही, मतलब ड्रीम बॉलिंग लाइनअप कह सकते हैं. कि स्पिनर भी सॉर्टेड है, पेसी में भी आपका सॉर्टेड है. बट देन अगेन इट्स ऑन पेपर्स, राइट? इट्स ऑन पेपर. यू नेवर नो व्हिच मोहम्मद सिराज वुड टर्न अप. यू नेवर नो प्रसिद्ध कृष्णा कैसे ही करता है. मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मोहम्मद सिराज तो होगा, ये 3-4 बॉलर तो बेहतरीन है, ठीक है. फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे यू कैन लुक एट वॉशिंगटन सुंदर, एंड मतलब मैं कह रहा हूँ शर्फिन रदरफोर्ड भी बॉलिंग कर सकते हैं, एंड इवन शाहरुख खान भी बाय द वे ही कैन रोल हिज आर्म. बट आप सोचो, इनके अलावा भी पता है इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट सॉर्टेड क्यों लगता है मुझे. दे हैव गॉट आर साई किशोर, दे हैव गॉट ईशांत शर्मा, they have got that guy, उनका नाम क्या है, Gerald Coetzee, South African guy who can also swing the bat later down the order. So they have got few options, and मतलब वो भी है, जयंत यादव भी वापस हैं इनके पास. बट जयंत यादव नहीं खेलेंगे, हमें भी यही लगता है, हमें जो लगता है. बट ईशांत शर्मा मोहम्मद सिराज से बेटर है, या आपको क्या लगता है? यार ईशांत शर्मा ना, आई वुड एनी डे पिक दैट गाय इन माय 11, ट्रस्ट मी. बट वही है ना, सिराज इज अ बिगर नेम. हाँ, और एज भी फैक्टर है कहीं ना कहीं. हाँ, करेक्ट. बट आई रियली फील कि ईशांत शर्मा एक्चुअली गिव्स हिज 100% ऑन द फील्ड, एंड एट दिस एज he's still playing the IPL, he's still out there bowling amongst these guys. I agree, he also gives 100%, but Siraj भी 100% ही देता है. तो प्रसिद्ध कृष्णा, बट आई एम सेइंग प्रसिद्ध कृष्णा विल प्ले फॉर मी. 2 सीजन आईपीएल नहीं खेले हैं, अब की बारी फाइनली पैसा भी दिया है ठीक ठाक उनके लिए, तो खेलेंगे. बट आई रियली वांट टू सी ईशांत शर्मा समवेयर. यार लेट्स सी, मतलब मे बी को हो सकता है ना, रोटेशन बेसिस पे हो सकता है, बट सिराज इज देयर, विल डेफिनेटली प्ले. हमारे हिसाब से आपके ये भी जरूर खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा. और रबाडा को आपने, मतलब रबाडा इज रबाडा यार, वो तो यार चलो लेट्स नॉट डिस्कस रबाडा. तो वही है कि ये टीम है हमारे हिसाब से 11. इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे ऑफ कोर्स यू कैन गेट साई किशोर आल्सो, यू कैन गेट सम अनदर बॉलर, यू कैन गेट अनदर बैटर. बट वही है कि 11 जो बेस्ट 11 हमें लगती है वो ये है. अब आप बताइए दोस्तों, because at the end of the day we might have a different opinion than yours. ये तो लव और मेरी टीम हो गई. अब आप बताइए, आपके हिसाब से is this team good enough first of all? Because हमें काफी लगा कि ऑलराउंडर्स जो है ना, बॉलिंग ऑलराउंडर्स ज्यादा हो गए एक तरीके से, कुछ बैटिंग ऑलराउंडर्स की जगह, एंड दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. बट लेट्स सी, मे बी गुजरात विल सरप्राइज अस ऑल लाइक दे डिड इन देयर वेरी फर्स्ट सीजन इन द आईपीएल व्हेन दे वन इट. बट तब हार्दिक पांड्या उनके ऑलराउंडर थे. बट लव लाइक करें, बताएं लोगों को कि नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस बात है. मैं जैसे प्यार जो दे रहे हैं हमें, ये वाली जो वीडियोस होती है इससे मजा कब आता है, व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट और आप अपने ओपिनियंस देते हो. सो अगर आप सोचो कमेंट सेक्शन में बाकी लोग भी ओपिनियंस देंगे, आप उनके साथ भी थोड़ी डिस्कशन करोगे, हम उनको रिप्लाई करके डिस्कशन करेंगे, तो एक क्रिकेटिंग माहौल बहुत अच्छा बनता है. सो दैट्स व्हाई वी से कि डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एग्जैक्टली, मजा ही उसमें यार, स्पोर्ट्स डिस्कशंस में और कहां मजा आता है. इट्स लाइक योर ड्राइंग रूम स्टफ, राइट? आप मजे डिस्कस कर सकते हैं. सो डू लाइक आवर वीडियोस एंड डू कमेंट, एंड प्लीज लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस डिस्कशंस. एंड जैसे मैंने बोला, सब्सक्राइब तो करना ही है. जस्ट एंड लोग बता भी रहे हैं, यू नो लॉट ऑफ पीपल लाइक, आज ही मैंने सुबह कितना अच्छा कमेंट पढ़ा, मतलब अच्छे कमेंट्स पढ़े. मैं मतलब एक कमेंट बताऊंगा तो गलत हो जाएगा. Very good comments, guys. Thank you so much for encouraging us all the time. You know, we have been loving the support that we have been getting, and we'll keep doing this for you. As long as we are here, we'll keep doing this for you. बस आप प्यार देते रहिए, और प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से भी, खुद भी करिए, एंड कमेंट भी करिए. बाकी इसके बाद और भी टीम्स आनी है, तो we will be back with more. Thank you for watching.